साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा फैसला, हर तरह के व्यापार पर रोक। गुजरात के मुख्यमंत्री पर रोष जताने वाली महिलाओं की सफाई, कहा एजेंडा नहीं न्याय की उम्मीद से जताई नाराजगी। वडोदरा में हरनी बोट कांड पीड़ितों से मिले इसुदान गढ़वी, पीड़ितों से बुरे बर्ताव पर सरकार की आलोचना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद गुजरात के वडोदरा में एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर पाकिस्तान के झंडे वाले पोस्टर्स लगाए गए हैं। वडोदरा शहर में एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर पाकिस्तान के झंडे वाले पोस्टर लगाए गए हैं। ये घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब देश हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के लिहाज से पहले से ही सतर्क है। शहर के नरहरी हॉस्पिटल से काशीबा हॉस्पिटल की ओर जाने वाले मार्ग पर कुछ पोस्टर्स देखे गए जिनमें पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था और उस पर पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा था, जिसके बाद झंडे वाले पोस्टर्स को सड़कों से हटा दिया गया। कल वडोदरा पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के सामने हरनी बोट कांड की पीड़िताओं ने अपना रोष व्यक्त किया, जिसके बाद इस मामले ने तुल पकड़ लिया है और अब इस मामले को लेकर महिलाओं ने अपनी बात सामने रखी है। हरनी बोट कांड की पीड़िता संध्या निजाम ने आज मीडिया से बातचीत में स्पष्ट कहा कि वे किसी एजेंडे या किसी के इशारे पर नहीं गई थी, बल्कि 1.5 साल से न्याय की गुहार लगाते लगाते थक चुकी हैं, इसलिए मुख्यमंत्री की सभा में आखिरी उम्मीद लेकर पहुंची थी। उन्होंने बताया कि वे बेहद गरीब परिवार से हैं, झोपड़ी जैसे घर में रहकर गुजारा कर रहे हैं और अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। આખા વડોદરાને ખબર છે કે આ એક ધમાલ નથી, આ એક રજૂઆત છે। અમે ધમાલ કરી હોય તો એને તોડ ફાડ કરી કહેવાય, એને ધમાલ કહેવાય। આ તો એક બે માં છે જે લાગણી અને એક રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે, તે કેવી રીતે કહી શકે છે કે આ એક ધમાલ કરી કહેવાય? કઈ રીતે કહી શકે છે કે તમને મેસેજ કરે છે? બાકી મોબાઈલ વગર તો તમને ખબર નથી પડવાની, તમે આવું તદ્દન ખોટું કેમ બોલી રહ્યા છો? બરાબર છે। અમે પોલીસના વિરુદ્ધમાં નથી, અમે પોલીસના વિરુદ્ધમાં પણ નથી, પણ જ્યારે પોલીસ ખોટું બોલી રહી છે ત્યારે અમારે તો સાચું કહેવું જ પડે। બાળકોને જે ન્યાય મળવો જોઈએ ને એની કરતા જે ગુનેગારો છે એને કઈ રીતે છાવરવાને એમાં પોલિટિકલ રોલ કમ્પ્લીટ ભાગ ભજવે છે। તો તમે છે ને ધ્યાન એના પર આપજો કે કોણ છે એને બચાવનારો। આજે એ તંત્ર જવાબદાર છે તો તંત્રને બચાવનાર કોણ છે? શાળાના સંચાલક છે તો એને બચાવનાર કોણ છે? તો તમે એના પર વધારે ધ્યાન આપશો તો તમને વધારે ખબર પડી જશે। જ્યારે જે વ્યક્તિ ન્યાયથી લડે છે, ન્યાય માટે લડે છે ને અમારી જોડે સપોર્ટ કરે છે ને, તો એને પર તમે નેગેટિવ ના વલણ ધરાવશો। બરાબર છે। જે વ્યક્તિ તમને કહેનારો છે કે અમને ચેટ કર્યું, આના દ્વારા ગયા છે, તો એ વસ્તુ ખોટી છે। કેમ? એ જે વ્યક્તિ ન્યાય માટે લડે છે તો એ વ્યક્તિ ખોટો છે અને જે ગુનેગારોને દબાવવામાં આવે છે તો એના પર તો કોઈ ધ્યાન દોરતું નથી। કેમ? એમના પર ડીપલી આવી રીતે વાતચીત નથી થતી। આજે અમારી પર તમે 4 કલાક એ કરો છો, બરાબર, લખાણ તમને પૂછપરછ, તો તમે જે ગુનેગારો છે એમને પૂછો ને અને પૂછપરછ કરો અને ગુનેગારોને તંત્રને પકડો, શાળાના સંચાલકોને પકડો। કેમ તૈયારીમાં એક્શન ના લેવાય? કાલે અમે સીએમ ને કીધું તો આજે મોર્નિંગ થી એક્શન કેમ ના લેવાય? જોઈએ હવે 5 મિનિટમાં એક્શન લેવાય છે કે નહીં, કડક પગલા કેમ નથી લેવાતા? એવી ફિલિંગ થાય કે જેમ કે હું કોઈ ગુનેગાર હોઉં, જેમ કે હું કોઈક મર્ડર કરીને આવી હું, એવું મને એવું લાગી રહ્યું હતું કે જેમ કે હું કોઈ ગુનો કરી દીધો છે, મેં કોઈ મર્ડર કરી દીધું છે કે મારું મોઢું દબાવવામાં છે કે બોલતી ના એમ। હું એમ કીધું કે ભાઈ આવું રૂડ બિહેવ ના કરશો, બરાબર છે। એને પછી મને ઢસેડીને લઈ જાય, ઢસેડે એટલે એ લોકોની અંદર એટલી તાકાત કે એવા ઢસેડે કે જેમ કે હું પડતી રહી ગઈ, 5-6 વાર પડતી રહી ગઈ। વિચારો હું પડી જાત, મારો હાથ પગ તૂટત, એક તો બાળક ગુમાવ્યું છે એનું દુઃખ હજુ તો 16 મહિના થઈ ગયા, ઓછું થતું નથી ને પાછા તમે આવી રીતે ખેંચતાણ કરો છો। મેં મારા બાળકની રજૂઆત માટે આવી છું, બરાબર છે, કે કોઈનો હલ્લા બોલ અમે કર્યો નથી, શાંતિથી જ અમે વાત કરી છે કે સર અમે એકદમ પાછળની રોમાં હતા, તો મેં જોરથી તો બોલવાની છું કે સર આવી રીતે અમે હળની પીડિત છે, તમે અમને સાંભળો। એટલે પછી એમને બોલ્યા કે હા ભાઈ એમને 5 મિનિટ માટે સાંભળી લઈશ। મંત્રીને અમે મળ્યા, રજૂઆત કરી કે ભાઈ 17 મહિના થઈ ગયા છે, બાળકોને અત્યાર સુધી ન્યાય મળ્યો નથી, પ્લસ શાળાના સંચાલકો અને તંત્ર જવાબદાર છે, 16 મહિના થઈ ગયા છે, હજુ સુધી એ લોકો પર કોઈ પગલા લેવામાં, એક્શન લેવામાં નથી આવ્યું, તો તમે ઝડપથી કડક કાર્યવાહી થાય એવું કરો, નહીં તો તમે સમિતિ બેસાડો। સીએમ ને એમ કીધું પર્સનલી કે તમે કમિટી બેસાડો અને બાળકોને 16 મહિના થઈ ગયા આવી ન્યાય મળે એવું કંઈક કરો અને કડક પગલા લેવાય તંત્ર પર, શાળાના સંચાલકો પર, પ્લસ કોમ્પન્સેશન 30 માર્ચે પડવાનું હતું એની જગ્યાએ પડ્યું નથી।
એટલે એના રિલેટેડ અમે વાત કરી છે. તો કે તમે તમારા વકીલને મોકલો, હું મળી લઈશ, વાતચીત કરી લઈશ, અથવા હું હિયર એ કરીશ, વકીલ આપીશ ને તમારા પ્રશ્નોનું સમાધાન કરીશ અને કમિટી મીધું બેસાડો અને કડક કાર્યવાહી થાય. હા, દિલ્હી પણ જઈશું અને બને તો પગપાળા જઈશું, પણ બાળકોને ન્યાય માટે તો કંઈક તો લડત કરીશું. એ હરની બોટકાંડની તો અમે પીડિત હરની બોટકાંડના હતા, પણ એમને તો કંઈક બીજા જ પ્રશ્નોની શરૂઆત કરી દીધી હતી કે તમે કઈ રીતે જાઓ છો, કેટલા વાગે ઘરેથી નીકળ્યા છો, સવારે ઉઠ્યા, ફલાણું ઢીકણું, કેટલા વાગે નીકળો છો તમે. પછી એના પછી સરલા ભાભી જોડે તમે કેવી રીતે કોન્ટેક્ટ કર્યો, આશીષ જોશી જોડે તમે કેવી રીતે કોન્ટેક્ટ કર્યો, કેમ મળ્યા, ક્યારે મળ્યા. તો તમે આ બધા પ્રશ્નોની શરૂઆત કાલથી કેમ કરો છો? આખું પ્રદેશ તરફ પણ બધાને ખબર છે કે આશીષ જોશી અમારા બાળકો માટે કામ એ કરે છે. એમને એકલાને એવી લાગણી છે કે જે અમારા બાળકોના ન્યાય માટે એ ભાગદોડ કરી રહ્યા છે. બરાબર છે. તો કેમ તે દિવસે કેમ પોલીસને ખબર પડી? કાલે જ કેમ પોલીસને એવું થયું કે ના ભાઈ આશીષ જોશી અમને સપોર્ટ કરે છે, એવું તમને કાલે જ કેમ થયું? આજે 16 મહિનાથી અમને સપોર્ટ કરે છે, અમારા બાળકો માટે અમને રોજ મેસેજ કરે છે કે બેટા તું શાંતિ રાખ. મેં એવું રડતી કહું છું કે અમારા બાળકને ન્યાય ક્યારે મળશે, તો એ મેસેજ કરીને કે છે બેટા શાંતિ રાખ, ફલાણું ઢીકનું. તો તમે 16 મહિના પર જાઓ ને, કાલે જ કેમ ગયા? તમને એવું તો શું ઉપરથી પ્રેશર હતું કે તમને અમે આટલા પીડિત છે ને તમે પાછા અમને મેન્ટલી આટલી વધારે સ્ટ્રેસ કરો છો? કે તમે આવી રીતે તમને કોઈ આવું ખેસ આપ્યો, કોઈ તમને સાડી આપી, તો તમે અમને મેન્ટલી વધારે સ્ટ્રેસ કરી રહ્યા છો. શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી એટલે જ મેં કીધું કે ભાઈ હું બોલતી નહીં, તમે મારું મોઢું ના દબાવશો. શ્વાસ મોં બાંધે એટલે ઓક્સિજન બંધ થઈ જાય મોઢામાંથી લેવાનો. બરાબર છે. એટલે સાંભળો તમે કે મને કઈ પણ થઈ જાત, હું બેભાન પણ થઈ જાત. વિચારો. ના, એ લોકોએ મારું સાંભળ્યું નથી. કારણ કે વિચારો તમે કે એ લોકોને એવું તો કેવું ટોર્ચરિંગ છે પોલીસોને. શું ગુનેગારો હોય એને બચાવવામાં આવે, એ લોકોને છાવરવામાં આવે, અને જે ગુનેગાર ના હોય ને એને આ રીતનું બિહેવ કરવાનું? જે ગુનેગાર ના હોય એને તમે મોઢું દબાવો, ખેંચતાણ કરો, શું આ રીતનું બિહેવિયર સાચું છે? એ માં પોતાની લાગણી રજૂ ના કરી શકે? આમાં કોઈનો ઈશારો યોગ્ય જે તમે કહી રહ્યા છો કે જે વડોદરા વાસીઓને લાગી રહ્યું છે કે આ કોઈના ઈશારે ગયા છે, જે અધિકારીઓ પણ જણાવી રહ્યા છે કે કોઈના ઈશારે ગયા છે, તો કોઈના ઈશારે અમે શું કામ જઈએ? અમારા બાળકો ગુમાવ્યા છે, અમે માં છે, બરાબર. અમે કોઈના ઈશારે શું કામ જઈએ? અમારી રજૂઆત ત્યાં એમને સર્કિટ હાઉસમાં ના સાંભળી ત્યારે અમારે તે દિવસે જવું પડ્યું ને. અને આ તો જાહેરમાં જ લખેલું છે કે તમે છે ને જાહેરમાં નિમંત્રણ છે, બરાબર છે. તમે જોઈ શકો છો બધી જગ્યાએ પોસ્ટરો પણ લાગેલા છે ને ન્યૂઝપેપરમાં પણ લખેલું છે કે તમે છે ને આવી રીતે જાહેરમાં આમંત્રણ છે. હવે એ રીતનું એમ હતું કે જ્યારે અમને એવું કહેવામાં આવ્યું કે તમને મીડિયાથી જો બચવું હોય તો અમે મૂકવાઈએ, તો અમે એવું કીધું કે હા વાંધો નહીં, મીડિયા અમને ઘેરી લેશે. અને અમે બે લેડીઝ એકલા જ હતા. બધું મીડિયા અમને ઘેરી લેશે ને એટલી બધી મીડિયા ઉભી છે બહાર, તો અમને વાંધો નહીં, તમે મૂકવા આવો ઘરે. તો અમને એવું લાગ્યું કે અમારું એ કંઈક સિક્યુરિટી જેવું લાગ્યું અમને થોડું. એટલે મેં હા વાંધો ના, તમે અમને મૂકવા આવો. તે મૂકવા આવતા એ ઘરે આવવાની જગ્યાએ ડાયરેક્ટ અમને ત્યાં પાણીગેટ લઈ જાય છે, પાણીગેટ થી ભદ્ર કચેરીઓ અમને તાપમાં ફેરવે છે. આ લોકો જયારે ગયા, એ લોકો એ જ હેતુથી ગયા કે અત્યાર સુધી અમને કોઈ પણ મુખ્યમંત્રી શ્રીને મળવા નહીં દેતા. એ બાધા રાખે છે અંદર કે અમે ગમે તે રીતે નહીં મળે. કારણ કે અમને ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગે છે કે આખી ઘટના જે છે એની બધી જાણકારી ભૂપેન્દ્રભાઈને નથી. અમને એવું લાગી રહ્યું છે કે એમનાથી છુપામાં આવી રહી છે વાતો. તો અમે આ હેતુથી ગયા હતા બે બહેનો કે ભાઈ એમને અમે રજૂઆત કરીએ, અમારી જે કઈ પીડા અમારા સાથે થઈ છે, જે અમારા સાથે વર્તન થયું છે, જે રીતની અમારી એફઆઈઆરો નહીં નોંધવામાં આવતી, તો અમે પોતે મુખ્યમંત્રી શ્રીને જઈને કહીએ એ નિરાકરણ લાવશે. પણ હવે એ થયું નહીં, પરંતુ એની જગ્યા પર મુખ્યમંત્રી શ્રીએ જ આવું કહી દીધું કે આમની વાત સાંભળવા જેવી નથી. પિતા તરીકે તો જો સાહેબ એવું અમને લાગે છે કે અમને ન્યાય નહીં મળે, પરંતુ હા જ્યારે અમે ન્યાયાલય સામે જોઈએ છે ને ત્યારે અમને એવું લાગે છે કે ભાઈ નેતા નહીં સાંભળે પણ ન્યાયાલય તો સાંભળશે જ ને. જે કઈ નેતા પણ આમાં સંડવાયેલો હશે તો એને સજા થશે. લેટ થશે પણ અવશ્ય થશે. કારણ કે દાદાને તો પોતરા પોતરી બહુ વાલા હોય, તો બે પોતરીઓ ગઈ એમના પાસે દાદા પાસે, આ રીતનું વર્તન કર્યું એ બહુ દુઃખ થાય છે સાંભળીને કે ભાઈ આવું એક રાજ્યના મુખ્યને આવું શોભતું નહીં. અને એના પછી સોના પર સુહાગા જે પોલીસે જે કાર્યવાહી કરી એની તમે જેટલું વખોડો ને એટલું ઓછું છે. મહિલાઓ સાથે તો બે જે મહિલા હતી એમનું મોઢું દબાવવામાં આવ્યું, આમ કરીને તમે બોલો ના. એટલે વડોદરાના પીડિતની ને ગુજરાતના પીડિત અને ગુજરાતની જનતાનું અમને એવું લાગી રહ્યું છે કે અવાજ દબાવવામાં આવે છે કે ભાઈ તમે સરકાર સામે કોઈ પ્રશ્ન તો ના જ કરી શકો. ભલે તમે આખી જિંદગી ભાજપને વોટ આપ્યો હોય, આખા મોહલ્લાને લઈને તમે ભાજપને વોટ આપવા જતા હોય, પણ તમારો છોકરો મરે ને તો તમે પ્રશ્ન તો નહીં જ કરી શકો.
વાત તો સારી હતી, પણ આ તો કેવું પેલું પેચ વર્ક કરવાનું હોય ને બિલ્ડિંગ ઉપર, એક ગોબાગાબી પડી ગઈ હોય, રોડ પર ગોબાગાબી પડી ગઈ હોય તો ડામરના પેચ વર્ક કરવામાં આવે છે. અમને એવું રીતના લાગી રહ્યું છે. જ્યારે કોંગ્રેસે દરખાસ્ત મૂકી કે ભાઈ પીડિતોને 25-25 લાખ આપો, તો જો તમે એટલું જ વડોદરાના હિતેચુ હોય તો કમ તમારા બધા કોર્પોરેટરો એક કોર્પોરેટરને છોડીને બધાએ નામાં વોટિંગ કર્યું. જ્યારે બજેટ સત્રમાં આ વસ્તુ કોંગ્રેસ પેશ કરી શકે કે ભાઈ બજેટ સત્રમાં હરની બોટકાંડના પીડિતનું પણ બજેટ રાખો તમે, તો કમ ભાજપના કોર્પોરેટરો હાથ ઊંચા નહીં કર્યા કે હા ભાઈ કોંગ્રેસની વાત બરાબર છે. શું એમને ન્યાય કરતા પીડિતોની પીડાને ઓછી કરવા કરતા એમની જે ભાજપ કોંગ્રેસ કરવું એ વધારે જરૂરી છે? ભલે રાજકારણ રમાઈ રહ્યું હોય, અમારા સાથે તો પહેલા દિવસથી રાજકારણ રમાઈ રહ્યું છે, પરંતુ અમને ભારતની ન્યાય પ્રણાલી ઉપર 100% વિશ્વાસ છે અને 110% ન્યાય મળશે. અમારા એડવોકેટ શ્રી છે એ સક્ષમ છે બેઓ ઠેકાણે. વડોદરામાં હિતેશ ગુપ્તા સાહેબ છે અને અમદાવાદમાં આપણા દવે સાહેબ છે, ઉત્કર્ષ દવે સાહેબ, એ બેઓ સક્ષમ છે અમને ન્યાય અપાવવા માટે. થોડું વિલંબ થશે પણ ન્યાય તો અવશ્ય મળશે. પણ થોડુંક રાજનેતાઓએ સમજવું જોઈએ કે ઓલાદો એમના ઘરે પણ છે. જો કોઈ હાદસો થાય છે ને તો એ હાદસો કોઈ હોળી ડૂબતી હોય ને તે નહીં જોતી કે ભાઈ આ નેતાનો છોકરો છે કે પ્રજાનો છોકરો. એ 14 બહેનો હોત ને તો અમને એવું લાગતું અત્યાર સુધી પણ અમને છોડતા નહીં. અમને એવું લાગી રહ્યું છે જો 14 ત્યાં હાજર હોત ને તો હજી પણ એ લોકો જેલમાં હતા. કારણ કે જે રીતના પ્રશ્ન થયા, તમે કેવી રીતના હાલો ભાઈ, આ તો કઈ પહેલગામમાં હુમલો કરવા થોડી આયા. ત્યાં પૂછો કે કેવી રીતના આયા, અહીં પૂછવાની કોઈ જરૂર નહીં. ત્યાં પૂછો તમે કે भाई पहलगाम में आतंकवादी केवी રીતના आया। गुजरात के वडोदरा में सीएम समक्ष मिलने की मांग करने वाली महिलाओं के साथ बुरे बर्ताव के बाद अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिलने पहुंचे। वडोदरा में 1.5 साल पहले घटे हरनी बोट कांड में 12 बच्चों की मौत हुई थी, जिनके दोषियों को आज भी सजा नहीं मिली है। इसी बीच मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची पीड़ित माता का मुख्यमंत्री ने एजेंडा लेकर आए होने की बात कहकर उनका अपमान किया था। इस मामले आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी उनसे मिलने पहुंचे। आप सब जानते हैं, अभी उन्होंने बात करी कि उन्होंने भी देखा कि कल मीडिया थ्रू उन्होंने देखा कि कल के किस तरह हमारे साथ में बर्ताव करा ये सब लोगों ने। तो आज एकदम से हमको मिलने आए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुम्हारे को सरकारी लीगल कुछ भी हेल्प जो चाहिए होए तो हम दे सकते हैं और हम तुम्हारे साथ हैं। 1.5 साल से हम पार्टी पे भरोसा करके रजूआत करके जा रहे हैं पार्टी के पास में कि न्याय दो न्याय दो न्याय दो, पर ये कोई भी ऐसा नहीं है उसमें कि हमको अजू तक उन्होंने न्याय दिया है। कल भी हम बहुत आशा से मुख्यमंत्री श्री के पास न्याय के लिए गए थे कि वो हमको न्याय दे सकते हैं, इतनी आशा लेके हम उनके पास गए थे। तो भी कल सबने देखा कि उन्होंने कैसी बात करी। उन्होंने डायरेक्ट एजेंडा लेके आए, ऐसी बात करी हमारी। तो पीड़ित परिवार एजेंडा लेके नहीं आया तो हम सब उनको हमारे छोकरों के लिए न्याय देने की आशा से आए थे। और बाद में पुलिस वालों ने हमको 4 तास या डीसीपी ऑफिस बिठा के रखा, पूछपरछ की। जब तब ऐसा लग रहा है कि हम पीड़ित नहीं है, हमने कुछ गुनाह करा है तो हमारे साथ ऐसा सब हो रहा है। पुलिस ने पहले तो पूछा, बहन तुम कैसे आए हो, गाड़ी पे आए हो, अकेले आए हो, किसके साथ आए हो, साड़ी क्यों केसरी कलर की पहन के आए हो, खेस क्यों पहन के आए हो, तुम्हारे को कोई ने बोला था ऐसा वैसा। तो मैंने क्या 17 महीने हो गए, हम 17 महीने से पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो हमारा हक बनता है, हम नागरिक तरीके हक बनता है कि हम मुख्यमंत्री के पास हमारे न्याय के लिए मांगनी करें, इसलिए हम आए हैं। पर ये लोगों को दूसरा कुछ चाहिए था, इसलिए उन्होंने 4.5 कलाक तक हमको बिठा के इंक्वायरी करी। पहले तो उन्होंने डायरेक्ट हम अंदर गए ना तो एक ज बात की कि बहन ऐसे बात नहीं होती है, बात करने का तरीका होता है, लिख के नोटिस लिख के रजूआत करनी पड़ती है। तो मैंने क्या कहूँ सर, आपको लगता है 1.5 साल से हम ऐसा सब नहीं कर रहे हैं? 1.5 साल से हम लिखित रजूआत कर रहे हैं, शांति से जाके सबको हमारी ये कर रहे हैं, पर कुछ हुआ नहीं। ये सब हमने करा है तो 1.5 साल के सब्र का बांध टूट गया, इसलिए करा है सर। नहीं बहन ऐसा नहीं होता है। क्या है तुम्हारी परेशानी क्या है? मैंने क्या सर आपको खबर नहीं हरनी बोट कांड
तुम जब हॉस्पिटल में मिले थे तब तुमने बोला था को कोई चपड़बंदी ने छोड़वामा नहीं आवे सर तुमने तो आज तक कोई ने पकड़ा पण नहीं। बेन हाईकोर्टનો મામલો છે, मुख्यमंत्रीश्रीने ऐसा बोला हाईकोर्टનો मामलो છે तो मैंने इनको इतना ज बोला हाईकोर्ट तुम्हारे से ऊपर नहीं है, तुम्हारे एक ऑर्डर से सब काम फास्ट तरीके हो सकता है तो तुम हाईकोर्ट पर मत ढोलो सर। हमको खबर है तुम अखे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री है तो तुम्हारे एक ऑर्डर से सब हो सकता है, तो तुम्हारे वकील से मेरी बात कराओ, हाँ सब हो जाएगा। जो हुआ है वो उसको पहले तो ओरिटेर में गुस्सा था, फिर बाद में वो अंदर तो गुस्सा अपने को खबर है अंदर तो गुस्सा था पर ऊपर ऐसा लग रहा है कि वो जैसा ये है ऐसा लग रहा है, इसलिए तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी न्याय नहीं मिला। क्योंकि सुबह जो गई थी मैं इतनी उत्साह से कि नहीं अब तो कुछ होएगा, मैं मुख्यमंत्री सर को मेरी सब पीड़ा कहूँगी ना तो वो न्याय दिलाएंगे, पर बाद में जो हुआ मेरे साथ में 5 बजे तक तो उससे नहीं लगता कि मेरे को न्याय मिलेगा, क्योंकि उनको न्याय की नहीं पड़ी थी। उनको न्याय की पड़ी हुई तो वो मेरे को जैसे ऑडिटर में से मेरे घर पहुंच देते, मेरे को घर का झूठा बोल के मेरे को डीसीबी ऑफिस ले गए वो लोग कि तुमको घर छोड़ देता हूँ, ये बोल के मेरे को पुलिस के गाड़ी में डीसीबी ऑफिस ले गए। इस मामले इसुदान गढ़वी ने पीड़ितों के साथ किए गए बुरे बर्ताव की आलोचना की। देखिए, कल मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जो बहन बच्ची की जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु होने के बावजूद न्याय नहीं मिला, तो वो मुख्यमंत्री से मिलने गए और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से व्यवहार किया वो बहुत ही दुखद व्यवहार था और इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। मुख्यमंत्री ने एक तो उनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था सुधारने की, नहीं हुआ, उनके मंत्रालय की और कॉरपोरेशन की वजह से बेदरकारी की वजह से ये बच्चियों की डेथ हुई है, बच्चों की, और न्याय नहीं मिल रहा है तो न्याय मांगने गए और उसमें भी उन्होंने जो वर्तन किया वो बेहुदा है। तो मुझे लग रहा है कि इसलिए मैं मिला, लेकिन मुख्यमंत्री बाद में 10 मिनट मिलते भी है फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है, उम्मीद भी नहीं है और उल्टा पुलिस इनको डराती है, धमकाती है, ये तो गलत बात है। ये मुझे लगता है कि अब मुख्यमंत्री ने चश्मा पहन रखा है कि सब जितने भी आवाज़ उठाते हैं या न्याय मांगते हैं वो सब भाजपा के विरोधी हैं, उनके चश्मा पहन ले। वो अभी भाजपा के सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहे हैं, गुजरात के नागरिकों के नहीं लग रहे हैं मुझे। ऐसा प्रोटोकॉल करके चिल्लाना ये तो मुझे लगता है कि उनकी नासमझ है। गुस्से होना वाजिब होता है, अधिकारियों पे होता है। प्रोटोकॉल डीजीपी प्रोटोकॉल उनको रखे कि मुख्यमंत्री है, डीजीपी को कहाँ करना है, कलेक्टर को कहाँ करना है, उनके मंत्रिमंडल और उनके मेयर को कहाँ बैठना है, वो प्रोटोकॉल नागरिकों के प्रोटोकॉल नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री के बॉस नागरिक होते हैं, ये मुख्यमंत्री को पता नहीं है। प्रोटोकॉल तो उनके अफसर निभाते हैं, उनके पदाधिकारी निभाते हैं। कोई लिखा नहीं है कानून में कि ये नागरिकों को प्रोटोकॉल निभाना है। प्रोटोकॉल नागरिकों को निभाने, प्रोटोकॉल नागरिक तो बॉस होते हैं, मालिक होते हैं, ये सब नौकर हैं। हम उनकी सैलरी देते हैं, कोई गुनाह नहीं बनता है। मुख्यमंत्री के सामने अगर आवाज़ नहीं उठा तो क्या हम पाकिस्तान न्याय मांगने जाएंगे, अमेरिका जाएंगे क्या, ट्रंप के पास? और मुख्यमंत्री को बिठाया क्यों है? इसलिए तो बिठाया है। और मुख्यमंत्री को हम सैलरी देते हैं, मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर देते हैं, मुख्यमंत्री को हम बंगला देते हैं, गाड़ी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, मुख्यमंत्री को हम चार्टर प्लेन देते हैं, इसलिए तो देते हैं कि वो सबका न्याय करवा सके। बहुत गलत हुआ और बेहुदा हुआ। मुख्यमंत्री को या तो माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके मिलने के बावजूद वो न्याय नहीं दिला पाए, इसके लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से आयात निर्यात बंद कर दिया है। भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर बैन लगा दिया है। सरकार ने इस फैसले का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी रोक लगा दी है। बंदरगाह और शिपिंग मिनिस्ट्री ने कहा कि भारतीय जहाज भी पाकिस्तानी बंदरगाहों पर नहीं जाएंगे। सरकार के इन फैसलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने शनिवार को हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति लॉरेंको से मुलाकात के दौरान ये बात कही।
पहलगाम के बैसन घाटी में आतंकी हमले के केस में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 75 लोगों को PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अरेस्ट किया है। देश में मध्य प्रदेश के जबलपुर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। मैनेजमेंट ने कर्मचारियों से कहा कि ये मुश्किल वक्त है, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए काम नहीं रुकना चाहिए। उधर पाकिस्तान ने शनिवार को बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। इस मिसाइल की रेंज 450 किमी है। पाकिस्तान ने ये नहीं बताया कि किस जगह पर इस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। गुजरात के वडोदरा में तीसरे सेकोकाई कराटे गुजरात स्टेट ओपन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। वडोदरा के गोत्री इलाके में तीसरे सेकोकाई कराटे गुजरात स्टेट ओपन चैंपियनशिप 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गुजरात भर से 500 से अधिक कराटे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चैंपियनशिप में विजेता खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को कराटे जैसे आत्मरक्षा के खेल के प्रति प्रोत्साहित करना और उन्हें एक सकारात्मक मंच प्रदान करना था। इस चैंपियनशिप का आयोजन सेकोकाई कराटे गुजरात की ओर से सुनील परमार, मितेश श्रॉफ, मलीपाल सिंह और प्रथम परमार द्वारा किया गया। थर्ड सिकोकाई टूर्नामेंट लास्ट 3 વર્ષથી કરી રહ્યા છે। આજે અમે બરોડામાં થર્ડ સિકોકાઈ ટુર્નામેન્ટ સિકોકાઈ પ્રાઇમરી તરફ કરાવ્યું છે। એમાં હું પોતે સુભાષ પરમાર, મારી સાથે સાથીદાર મિતેશ શ્રોફ, સાથે કુંપાવત સિંહ, અમારા બરોડામાં સારી બ્રાન્ચીસ ગોરવા, સમતા, વારસા રોડ, વાસા રોડ અને ગોત્રી રોડમાં ચાલી રહ્યા છે। કુલ અમારા કુલ પોતાના 200 ઉપર પાર્ટિસિપેન્ટ્સ છે, પ્લસ આઉટસાઇડથી બીજા 250 પાર્ટિસિપેન્ટ છે। કુલ મિલાઈને 450 પાર્ટિસિપેન્ટ થયા છે। એમાં ગાંધીધામથી, રાજકોટથી, કચ્છથી, સુરતથી, અમદાવાદથી પણ પાર્ટિસિપેટ આવ્યા છે। એ બધા ઘણા સારી લોકોએ પાર્ટિસિપેટ કર્યા છે। VNM टीवी पर वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VNM टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस behind Yash Complex, Geri Road, near Sundaram Nagar, Gotri Road, Vadodara. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV.
Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture,
Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित एक होटल में आग लगने की घटना ने गुजरात के एक परिवार को शोक में डुबो दिया है। अजमेर में हुए भीषण हादसे में लाठी निवासी नूरानी परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अल्फेज नूरानी, उनकी पत्नी शबनम नूरानी और 1.5 वर्षीय पुत्र अरमान नूरानी के रूप में हुई है। पूरा परिवार अजमेर शरीफ दरगाह में सलामी भरने के लिए गया हुआ था, जहां ठहरे होटल में अचानक आग लग गई और उनकी जान चली गई। आज रोज अमरेली जिल्लाना लाठी तालुकाना રહેવાસી નુરાની પરિવારના 3 સભ્યો અજમેર શરીફ ખાતે ઝિયારત માટે ગયેલા હતા અને ત્યાં એક હોટલમાં એ રોકાયા હતા અને ત્યાં આગ લાગવાની જે ઘટના ઘટી ત્યારબાદ આ પરિવારનો સમગ્ર માળો વિખાઈ ગયો। એ રીતે આ પરિવારના 3 સભ્યો આ દુનિયામાં અત્યારે નથી। આજ રોજ લાઠી ખાતે સમગ્ર ગુજરાતના મુસ્લિમ સમાજના બિરાદરો દ્વારા એમની દફનવિધિ કરવામાં આવી। મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા। આ સમગ્ર ઘટનામાં જે દોષીઓ છે, જે હોટલ માલિકોની બેદરકારી છે અને જે સ્થાનિક રાજસ્થાન પ્રશાસનને પણ અમારી વિનંતી છે કે આ મામલાની નિષ્પક્ષપણે ગંભીરતાથી અને ઝીણવટભરી તપાસ થાય અને જેમની પણ બેદરકારી સામે આવે એની ઉપર સખતમાં સખત કાર્યવાહી થાય। કારણ કે કોઈપણ પ્રવાસન ક્ષેત્રની અંદર કોઈપણ પ્રવાસીઓ ત્યાં જાતા હોય, કોઈ ધાર્મિક જગ્યાએ દર્શનાર્થે જાતા હોય, ઝિયારત માટે જતા હોય અને પરિવાર સાથે જતા હોય અને આ પરિવારના તો એક 1.5 વર્ષના બાળક સાથે પતિ પત્ની બંને અલ્ફેજભાઈ અને એમના પત્ની શબનમબેન બંને આજે આ દુનિયામાં નથી અને હારૂનભાઈનો એમ કહેવાય કે આ માળો આખો વિખાઈ ગયો છે। તો આ દુઃખદ ઘડીની અંદર એક સમાજના મોભી તરીકે પણ આજે અમે પણ અહીંયા ઉપસ્થિત રહીને આ પરિવારને સાંત્વના પાઠવીએ છીએ અને સાથે રાજસ્થાન પ્રશાસનને અને ગુજરાત સરકારને બંનેને અમારી ખાસ વિનંતી છે કે આ મામલાની ગંભીરતાપૂર્વક ઝીણવટભરી અને નિષ્પક્ષ તપાસ થાય ને વહેલી તકે આની અંદર જે કોઈ દોષીઓ છે એને સજા મળે। ભવિષ્યની અંદર આ પ્રકારના બનાવ ન બને તેની પર તાકેદારી રાખવામાં આવે। સાથે સાથે આ બનાવ જ્યારથી બન્યો ત્યારથી રાજસ્થાન પ્રશાસન સાથે અમે લોકો અને ગુજરાતના ઘણા બધા અમરેલી જિલ્લાના અને મુસ્લિમ આગેવાનો સતત સંપર્કમાં હતા, સમગ્ર પૂરી રાત સંપર્કમાં હતા અને રાજસ્થાન પ્રશાસન દ્વારા પણ ત્યાંની પોલીસ કર્મીઓ, પોલીસ ઓફિસરો અને ત્યાંના ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા પણ આ મામલે વહેલામાં વહેલી તકે જે મૃતદેહો છે એ પાર્થિવ દેહ એમના માદરે વતન પહોંચે એના માટેના પણ પ્રયત્ન કરો। એ માટે કરીને રાજસ્થાન સરકારનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ અને સાથે સાથે અમારી ખૂબ માંગ છે કે આ મામલામાં જે કોઈ પણ દોષીઓ એને કડકમાં કડક સજા થાય અને જે કોઈ લોકોએ, જે કોઈ કમિટીઓએ આની અંદર આ અંજુમન કમિટી સહિત જેટલા પણ લોકો છે એ બધાએ એમાં સહકાર આપ્યો છે, એ બધાનો પણ અમે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। गुजरात के वडोदरा के अटलादरा रोड पर नाइट्रोजन टंकी गिरने से हड़कंप मच गया। वक्फ बिल कानून को लेकर देश भर में चर्चाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में वडोदरा में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के गौ रक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फैज खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह सम्मेलन वडोदरा के राजपथ होटल में आयोजित हुआ, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा संसद में पास किए गए वक्फ बिल कानून का समर्थन किया। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया है, वो मुसलमानों के हक में है और अब इससे पारदर्शिता आएगी। लगभग 8 लाख एकड़ भूमि वक्फ के पास है। सेना के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा भूमि है, लेकिन मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब है क्योंकि इसका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा था। अब ये कानून बनने के बाद इसका मैनेजमेंट सही तरीके से होगा। कलेक्टर देखभाल करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG इसका ऑडिट करेंगे। इसमें ज़्यादा पारदर्शिता आएगी क्योंकि इस्लाम के सभी फ़िरकों का, सभी वर्गों का, 2 सुन्नी, 2 शिया, बोहरा, महिलाएं, 2
एक्सपर्ट, नॉन मुस्लिम, इन सबको भी इसमें लिया जा रहा है। और एक बात तो बार बार गलतफहमी फैलाई जा रही है कि इस्लाम में हस्तक्षेप है, मस्जिद, दरगाहें, खानकाहें छीन ली जाएगी। तो आप इस बात को समझ लीजिए, अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। जो मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, कब्रिस्तान जैसी हैं बिल्कुल वैसी ही रहेंगी, उसमें से किसी को भी छीना नहीं जाएगा, बल्कि इसका मैनेजमेंट और स्ट्रांग होगा, अच्छे लोगों को शामिल किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि 100 साल से कोई 10 रुपये किराया दे रहा है, अभी तक 10 रुपये किराया दे रहा है, मेन मार्केट में दुकान है, अब उसका सही किराया आएगा तो मुसलमानों के लिए स्कूल, कॉलेज, मेडिकल सेंटर, स्किल सेंटर, रोजगार के केंद्र, ये सारे खुलेंगे। जो लोग मनमानी कर रहे थे, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वर्गला रहे हैं, दरअसल उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी पर खुद कब्जा किया हुआ है, इसलिए मुसलमानों को बार बार भड़का रहे हैं कि तुम्हारी मस्जिदें, दरगाहें छीन ली जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आतंकवादी देश का नाम है पाकिस्तान, और सबसे बड़ा आतंकवादी है असीम मुनीर। उसने पहले भी कहा था एक भड़काने वाली बात कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया। हालांकि वो पाकिस्तान बनाने वाला था जिन्ना बस जानवर का गोश्त खाता था और जिन्ना शराब पीता था, तो उसने इस्लामिक राष्ट्र बनाया है। तो बोलने में भी मुझे तौबा करना पड़ रहा है, वो कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, वो एक आतंकवादी राष्ट्र है। और उसी ने हमारे देश की एकता, अखंडता और ताने बाने को तोड़ने के लिए लोगों से धर्म पूछ कर गोली मारी ताकि हमारी एकता टूट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा उनका पानी बंद हो गया, उनका इंटरनेट बंद हो गया, उनका हाई कमीशन बंद हो गया, पाकिस्तानियों को चुन चुन कर भगाया जा रहा है। और बहुत जल्द पाकिस्तान 5 टुकड़ों में टूटेगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा और ये अपना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का होगा। लेकिन फिर भी इस देश में मुसलमान पूरी तरीके से सुरक्षित है, आराम से अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे देश की, हमारे हिंदू भाइयों की महानता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद गुजरात पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। अमरेली जिले की एसओजी टीम ने धारी के हिमखिमड़ी इलाके में स्थित एक मदरसे से शंकास्पद मौलाना को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। मौलाना के मोबाइल से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 7 संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं, जिससे पुलिस ने जांच को और तेज कर दिया है। धारी के प्रांत अधिकारी हर्षवर्धन सिंह जाडेजा ने अपनी टीम के साथ मदरसे का निरीक्षण किया और निर्माण की वैधता की जांच शुरू की गई है। धारीना हिमखिमड़ी पर विस्ताરમાં છે એક મૌલાના આવેલા છે, એમના ફોનની તપાસ કરતા એમના ફોનમાં અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાનમાં રહેલા વોટ્સઅપના ગ્રુપો છે, એમનામાં એ જોડાયેલા છે, તો એમનો ફોન મળી આવેલા છે। એમની જોડે જોડે જ્યારે એમને પહેલાં પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી ત્યારે આધાર કાર્ડ સિવાય એમની પાસે કોઈ આઈડેન્ટિટી અથવા સિટીઝનશીપના પ્રૂફ નહોતા। જે અત્યારના જોતા એમની પાસેથી એમના પાસપોર્ટ અને એક બીજા ડોક્યુમેન્ટ છે મળેલા છે, જેમની ખરાઈ પણ અત્યારના ચાલુ છે। વોટ્સએપ ગ્રુપોમાં એ બીજા જે પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનના છે વોટ્સએપ ગ્રુપોમાં જોડાયેલા છે, એમની પણ માહિતી મંગાવવામાં આવેલી છે અને આગળ જે ફોન છે એ ટેકનિકલની જે ટીમ છે એમને મોકલવામાં આવેલું છે। गोवा से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां भगदड़ से कई लोगों की मौत हो गई है। गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान शुक्रवार शाम मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया में खबर शनिवार सुबह आई है। हादसे में 40 से ज्यादा घायल हैं, जिनमें से 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बिचोलिम हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। घटनास्थल से अभी भी लगातार एम्बुलेंस से घायलों को हॉस्पिटल लाया जा रहा है। शुक्रवार शाम को बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी भीड़ के बीच अफरा तफरी की स्थिति बन गई, जिसके बाद भगदड़ मच गई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक क्राउड मैनेजमेंट के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की वजह से हादसा हुआ। श्री लहराई यात्रा नॉर्थ गोवा के बिचोलिम तालुका के शिरगांव में आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू धार्मिक उत्सव है, जो देवी लहराई को समर्पित है। यात्रा हर साल अप्रैल या मई में होती है। इसमें गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं। यात्रा 2 मई की शाम से 3 मई की सुबह तक आयोजित की गई थी। इसी दौरान हादसा हुआ। वीएनएम टीवी पर वक्त है अब एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey,
the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Hotel Regenta Fairlark Vadodara, managed by Royal Orchid Hotels Limited, वडोदरा वासना भाईली रोड रिजेंटा फेयरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेयरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेयरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. गुजरात के वडोदरा में एक बार फिर से पानी के लीकेज का मामला सामने आया है। वडोदरा के मांजरपुर इलाके में स्थित इंद्र कॉम्प्लेक्स के पास पानी की लाइन में चौथी बार लीकेज की घटना सामने आई है। इस बार भी नगर निगम की लापरवाही उजागर हो गई है। लगातार चौथी बार हो रही इस खराबी से क्षेत्रवासियों में आक्रोश का माहौल है। पूर्व उप प्रमुख और वडोदरा शहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद शाह ने इसे निगम की लापरवाही भरा कार्य बताया है। उन्होंने कहा कि एक ही जगह पर बार बार पानी की लाइन में लीकेज होना नगर निगम की घटिया गुणवत्ता और लापरवाही का प्रमाण है। અહીંયા આ ત્રીજી વખત પાણી લીકેજ થઈ રહ્યું છે। પરમ દિવસે અહીંયા ડામરવાળો જે રોડ બનાવ્યો તે રોડમાં અંદર નીચે ખાડામાં માટીનું પુરાણ કર્યું નહીં। આ બધી માટી એ લોકો ટ્રેક્ટર ભરીને બીજે લઈ ગયા અને જેનાથી
અને ઉપર રોલર ફેરવ્યું તો અંદર પોલાણ હોવાથી પાણીની પાઇપલાઇન પાછી તોડી નાખી છે અને આજે અમારા ઘરે 2 દિવસથી અમારા શોપિંગમાં પાણી આવતું નથી. તો આ કોર્પોરેશનની અણઘડ કામગીરી છે, તેનો આ ઉત્તમ નમૂનો છે. એક જ જગ્યાએ ત્રીજી વખત આ લોકોએ ખોદકામ કર્યું અને ત્રીજી વખત પાણીની લાઈન તોડી છે. તો આ કોન્ટ્રાક્ટર જે બી હોય, હું તો કહું છું કે આના કોન્ટ્રાક્ટરને એક પણ રૂપિયો આપવો ના જોઈએ એની કામગીરીનો, કારણ કે એણે કામગીરી બરાબર કરી નથી. અથવા તો પછી જે મ્યુનિસિપલ કમિશનર છે એ આ કોન્ટ્રાક્ટરને જે બિલના પૈસા ચૂકવવાના હોય એ મ્યુનિસિપલ કમિશનરના પગારમાંથી આપવા જોઈએ. મારું એવું માનવું છે, પ્રજાના વેરામાંથી આપવા ના જોઈએ. પ્રજા તમને વારંવાર એક જ જગ્યાએ ખાડા ખોદવા માટે વેરો નથી ભરતી, બરાબર. પ્રજા વેરા એટલા માટે ભરે છે કે સુંદર કામગીરી અને સુઘડ કામગીરી માટે કરે છે. તેની જગ્યાએ આ અણઘડ કામગીરી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ कॉर्पोरेशन. इन दिनों दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिस पर वडोदरा कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया. वडोदरा में एक बार फिर से दूध के दामों में हो रही लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की लहर उठी है. इसी मुद्दे को लेकर वडोदरा शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से वडोदरा डेयरी के सामने एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी समेत कांग्रेस कार्यकर्ता जुड़े. वहीं आम नागरिकों ने भी दूध दही के दाम कम करने की मांग उठाई. ₹15 લીટર ચાલતું હતું, જ્યારે 5 પૈસા વધે એટલે આંદોલન ચાલુ કરી દીધા હતા. હવે રૂપિયા 2 રૂપિયા વધે એટલે લોકોને પડી ગઈ. લોકો માટે, ગરીબો માટે, છોકરાઓ માટે, નાના છોકરાઓનો આ દૂધ હોય છે એના પર ભાવ વધારાની ચાલુ હોય. આવું તો ખોટું છે. આ તો ભાજપ સરકાર બહુ ગલત કરી રહી છે. वहीं इस मौके पर मांग पूरी ना किए जाने पर भविष्य में आंदोलन करने की चेतावनी ऋत्विज जोशी द्वारा दी गई. जो दूध के भाव में बढ़ोतरी हुई है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है. पर लीटर 2 रुपया भाव बढ़ाया है. आज गरीब और मध्यम वर्ग जो है वो उनका घर चलाना भी मुश्किल है. कुछ ही समय पहले एलपीजी गैस में भी 50 रुपए का बढ़ोतरी हुआ, फिर ये लोग 14 रुपए कम करते हैं, बढ़ाते ज्यादा है, कम करते हैं. और दूध का जो भाव बढ़ाया है, आज देखिए कि जो यहाँ के शहर के लोग हैं, जो गरीब और मध्यम वर्ग है, उनका सोचे बगैर इन्होंने दूध के भाव में बढ़ाया है. तो ये कांग्रेस पार्टी की डिमांड है. हम यहाँ पे डेयरी पे आंदोलन करने आए थे कि भाई ये जो भाव बढ़ा है इसको वापस लेना चाहिए. कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर इनकी इच्छा शक्ति है, अगर ये चाहे तो यहाँ के एमएलए सांसद सब मिलके यहाँ पे अगर डायरेक्टरों को बोल के ये भाव कम कर सकते हैं. लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से इनको बोलती है कि भाव बढ़ाओ और प्रजा को परेशान करो. जिन लोगों ने वोट दे के सत्ता में बिठाया, आज उसी जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार परेशान कर रही है. गुजरात के वडोदरा की इंडस फायर एंड सेफ्टी प्राइवेट लिमिटेड ने इतिहास रच दिया है. वडोदरा के इंडस फायर एंड सेफ्टी प्राइवेट लिमिटेड यानी IFSPL देश की पहली और एकमात्र कंपनी बन गई है, जिसे इंटरनेशनल फायर सर्विस एक्रेडिटेशन कमीशन से आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है. 2 साल से हम इसके पीछे मेहनत कर रहे थे कि ये सर्टिफिकेट और एक्रेडिटेशन हम इंडिया में ला पाए. इसके लिए हमने कंसल्टेंट्स बुलाए थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम सऊदी, दुबई, इवन फ्रॉम अफ्रीकन कंसल्टेंट्स हम लोग ने हायर किए थे सो दैट वी कैन गेट टुवर्ड इट. ऑडिटर्स आए थे फ्रॉम US, फ्रॉम साउथ अफ्रीका, फ्रॉम अमेरिका, कोलोराडो, सब जगह से ऑडिटर्स आए थे जो यहाँ पे आके पूरा साइट विजिट किया. इन्होंने पूरा हमारे फैसिलिटीज़ का विजिट किया, डॉक्यूमेंटेशंस, एवरीथिंग वाज डन. फाइनली इट वाज एक्रेडिटेड टू अस. लास्ट वीक हमको एक्रेडिटेशन मिल गया, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था. एंड द पॉइंट इज़ ये एक्रेडिटेशन और ये जो अप्रूवल हमको मिला है, इससे हम बड़ौदा में जो इंस्टीट्यूट्स ऑपरेट करेंगे एंड जो लोग यहाँ पे आएंगे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट वर्ल्ड, पूरे एशिया में से, इवन साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, लोगों से जहाँ से लोग आएंगे बड़ौदा में आएंगे टू गेट ट्रेंड. दे विल लिव एंड प्रॉस्पर इन बड़ौदा. हम इससे 2 चीज़ें आगे देख रहे हैं. एक, हम इंडिया में रोज़गार, जो इंडियन फायर फाइटर्स है उनको ग्लोबल लेवल पे रोज़गार दिलाने के लिए एक हमारा एफर्ट है. और दूसरा, इससे जो हमारा फायर फाइटिंग स्टैंडर्ड्स है इंडिया में, जो ऑलरेडी अच्छा है, उसको और आगे हमारी साइड से इम्प्रूव करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं.
इसके साथ ही IFSPL अब NFPA यानी नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के वैश्विक मानकों के आधार पर फायर फाइटर्स को प्रमाणित कर सकेगी। NFPA को दुनिया भर में फायर सेफ्टी के सबसे सख्त और अपनाए गए बेंचमार्क के रूप में जाना जाता है। IFSCA की यह मान्यता न केवल कंपनी की गुणवत्ता को दर्शाती है, बल्कि ये भारत के फायर फाइटिंग प्रोफेशनल्स के लिए एक नई राह भी खोलती है। अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। से हम इंडस फायर सेफ्टी प्राइवेट लिमिटेड से है। हम बड़ौदा में बेस्ड है। हम 1993 से लास्ट 3 डेकेड से हम फायर एंड सेफ्टी फील्ड में है। हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था एज अ टेक्निकल मैन पावर सर्विस प्रोवाइडर फायर एंड सेफ्टी फील्ड के लिए, जहाँ पे हम इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, फार्मा इंडस्ट्रीज में हम टेक्निकल मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हम फायर टेंडर, फायर ट्रक्स और इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। हम लोग फायर एंड सेफ्टी ऑडिट्स करते हैं। हम लोग काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स करते हैं, जो पब्लिक ट्रेनिंग्स भी हम करते हैं और इंडस्ट्री के लिए हम ट्रेनिंग्स करते हैं। तो रिसेंटली हमको अवार्ड हुआ है IFSAC, जो इंटरनेशनल फायर सर्विस एक्रेडिटेशन कांग्रेस है, उनसे हमको सर्टिफाइड किया गया है कि हम NFPA ट्रेन कोर्सेज रन कर सकते हैं। तो हम इंडिया, ना कि जस्ट इंडिया में बट ग्लोबली उन एक एंटिटी में से है, जो बहुत कम एंटिटीज में है, जो हम लोगों को सर्टिफाई कर सकते हैं, फायर प्रोफेशनल्स को हम सर्टिफाई कर सकते हैं। अभी ये बहुत बड़ा एक एक्रेडिटेशन हमें मिला फायर का, वर्ल्ड्स बहुत फ्यू कंट्रीज में है, कंट्रीज को मिला ये एक्रेडिटेशन। तो हम लोग बहुत खुश है, ये हमें मिला। 32 ईयर्स से हमारा कंपनी चल रहा है। इसमें हम लोग फायर एंड सेफ्टी में मैन पावर सप्लाई कर रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, काफ़ी कुछ हम लोग ये अभी ये ट्रेनिंग से हम सोच रहे हैं कि इंडिया में फायर का एक लेवल हम आगे बढ़ा दें। गुजरात के वडोदरा के अटलादरा रोड पर नाइट्रोजन टंकी गिरने से हड़कंप मच गया। वडोदरा शहर के अटलादरा क्षेत्र में नाइट्रोजन से भरी एक टंकी आइसर टेम्पो से फिसलकर सड़क पर गिर गई। यह हादसा उस समय हुआ जब वाहन अटलादरा रोड पर मोड़ ले रहा था। भारी टंकी बीच सड़क पर पलट गई, जिससे कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी तरह की जान हानि नहीं हुई। मौके पर तुरंत अटलादरा पुलिस पहुंची और ट्रैफिक को नियंत्रित करने का प्रयास किया। અટલાદરા મેઇન રોડ છે, 50 મીટરની અંતરમાં ભાઈની ગાડી પાલકામથી છૂટી પડી ગઈ છે। માલહાની જાનહાની થઈ નથી અને ટ્રાફિક પણ હતો નહીં। એટલું કુદરતી સારું છે કે 50 મીટરના અંતરમાં ટ્રાફિક જવાનો ફટાક દીકરીને આવી ગયા અને ટ્રાફિક તો હતો જ નહીં, પણ તોય બધું કંટ્રોલ કરી લીધું છે। એટલે કોઈ એવી જાનહાની થઈ નહીં, પાછો પાલકામથી છૂટી પડી ગયેલી ગાડી છે। गुजरात के वडोदरा के PN गाडगिल एंड सन्स आर्ट गैलरी में व्रज होली नामक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वडोदरा में PN गाडगिल एंड सन्स में व्रज होली अ ट्रिब्यूट टू राधा कृष्ण नामक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन जाने माने तस्वीरकार व्रज मिस्त्री नारायण पटेल, मधु खेरे द्वारा किया गया। अहमदाबाद के तस्वीरकार मुकेश ठक्कर द्वारा व्रज होली के अलग अलग रंग तस्वीरों में दिखाई दिए। वहीं इस मौके पर वडोदरा और अहमदाबाद के तस्वीरकार और इंटरनेशनल फोटोग्राफर नफीस खान भी उपस्थित रहे। मेरे सन ने मुझे DSLR कैमरा गिफ्ट किया। तब तक कैमरा की कोई जानकारी नहीं थी। बाद में अहमदाबाद में नव गुजरात कॉलेज में जो फोटोग्राफी का कोर्स है, वो बेसिक कोर्स किया। कैमरा के बारे में, फ़ोटोग्राफी के बारे में बेसिक चीज़ें जानी। और फिर मैंने अहमदाबाद की जो 2 क्लब है उसको मैंने ज्वाइन किया।
एक तो है सीसी के अहमदाबाद और दूसरा है निहारिका। दोनों में से जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, आर्ट लवर्स, उनसे बहुत सी जानकारी, बहुत सी टिप्स, फोटोग्राफी क्या है, कैसे करनी है, कंपोजिशन क्या है, फोटोग्राफी के लिए क्या महत्व है, और बाद में मैंने वहीं से ही जाना कि कंपटीशन में भी हम पार्ट ले सकते हैं। आर्ट वर्क जो है फोटोग्राफी का, उसमें मैंने आगे बढ़ने का सोचा, तो कंपटीशन में पार्ट लेने से मुझे मेरे जो फोटोग्राफ्स थे उसको कसौटी की एरण पे चढ़ाने का मुझे मौका मिला। मुझे किस टाइप की फ़ोटोग्राफी करनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट होते हैं, नहीं होते हैं, और जब सिलेक्ट होते हैं तो आनंद होता है, उसमें भी जब अवार्ड मिलता है तो और आनंद होता है, फोटोग्राफी का लगाव रहता है। ये जो एग्जीबिशन है उसमें मैं जो फोटोग्राफी करके लाया हूँ वो व्रज की है, वृंदावन की है। वृंदावन में खास करके जो गोस्वामी समाज का जो फोटोग्राफी का कार्यक्रम होता है वो 10 दिन का होली का कार्यक्रम होता है। 10 दिन में पहले दिन बरसाना में लड्डू होली होती है, लड्डू प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। बाद में बरसाना से रियल होली चालू होती है, कलर होली। वहाँ जो राधा जी का मंदिर परिसर है उसमें मुझे फ़ोटोग्राफी करने का अवसर मिला। वहाँ से जो फ़ोटोग्राफ लिए हैं वो एग्जीबिशन में मैंने एग्जिबिट किए हैं। गुजरात के वडोदरा में बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन अपने 50वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रहा है। वडोदरा में बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन अपनी 50वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रहा है, जिसके तहत कल यानी 4 मई को रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली लक्ष्मी विलास पैलेस गेट से डांडिया बाजार 4 रास्ते से होकर मार्केट 4 रास्ता से कीर्ति स्तंभ के पास गुजरात क्रीडा मंडल प्रदर्शन ग्राउंड पर समाप्त होगी, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। सुवर्ण जयंती अवसर जो कि बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन अपने 50वें वर्ष को आयोजित कर रहा है, उसकी रैली हमने स्पोर्ट्स रैली रविवार 4 मई शाम को 5 बजे से आयोजित किया है, जिसमें इस बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन के 50 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर हमने सारे स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को जो कि 50 साल से बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, वो सारी संस्था है, पुरानी संस्था है, उन सभी को हमने आमंत्रित किया हुआ है कि 50 वर्ष की हमारी इस प्रथम प्रोग्राम में आए सब शामिल हो। इस रैली में वडोदरा के खेल जगत के सभी खिलाड़ियों को हम आमंत्रित करते हैं। आइए और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन की स्वर्ण जयंती के इस पहले प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। जियो टीवी, डेली हंट, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 498 पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी।